पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साझी आप सबों को प्राप्त हो। Dear Reverend Father Louis Mascarenas, the President of the Diocese of Allahabad, Reverend Father Isidore D'Souza, the grieving family members of our loving Sister Maria and my dear sisters. How lovely is your dwelling place, O Lord of hosts! My soul longs indeed, it faints for the gods of the Lord. Oh, happy is everyone who trusts in you. Today, wholeheartedly render our thanks to the Almighty for the precious gift of Sister Maria to our congregation, especially to our province. She was born on 27th June 1962 as the third child among 6 children, 4 daughters and 2 sons of Mr. Anthony Vagis and Mrs. Catherine Bernard, Edathua, Changanasheri, Kerala. She entered the congregation on 1st June 1985. Her first profession was on 2nd February 1989 and final profession was on 13th May 1995. She molded herself during the years of formation to lead a simple life, to radiate the values of Jesus her beloved in her community life and in the apostolic fields. With the goal of becoming perfect in communion with God and brethren, she lived her principle of selfless love and service to the brethren. By assimilating herself to the sacrifice of Jesus Nazarene and offering herself as a holocaust, holy and pleasing to God to the end of her life, she walked even her last step for others. The never-fading smile on her face drew everyone to her motherly heart without any discrimination. Everyone found a comfortable place in her heart. She was a genuine mother, a true sister, a true disciple of Christ. We, the sisters of our congregation, are able to say proudly that she was an aroma of Christ wherever she was placed. She opted for the mission courageously and served the people in the remote villages and worked in the school, having completed her kindergarten training. She had undergone social work training and was privileged to work with the Blessed Rani Maria FCC in the Diocese of Satna at Odgadi. Wherever she was the superior, she taught the lesson by her life that authority is service by serving everyone, caring for the needy, and lavishing her motherliness to everyone. I place my trust in my Lord. Let me brief to you the last days of Sister Maria. After taking the first dose of COVID vaccine on 25th of March, she was enthusiastic and as normal as always till 13th April. On 30th she had a slight fever and the next day COVID test was done and it was negative. So she thought it would be a viral fever and consulted with the nurses and started antibiotics. Still she was on normal life. By 16th April, since the fever increased, she was taken to Geolia Hospital with so much difficulty due to lockdown. The conditions of Delhi hospitals were really pathetic. The test was done in Geolia Hospital run by SD sisters and was suspected of
pneumonia. We were asked to take elsewhere due to the unavailability of further treatment facilities if needed. Thus, we looked for another hospital, and after making lots of adjustments, MSc Sisters of St. Joseph Hospital, Ghaziabad, admitted her. From 20th April, her condition became worse and was shifted to ICU. She was in the need of remdesivir injection, which was not easily available. Still, God blessed her to receive even when the humanity is running short of it. Two of these were carried by Sister Geeta and me on the same night, and the rest four were arranged by Reverend Father Jimmy Matadil, the parish priest of Haram, Delhi. From 22nd to 28th, she was in an extreme fluctuating condition. She was shifted to ventilator on 24th April, and her younger sister visited her on 25th April, Sunday. The holy anointing heals the sick and rescue from the sufferings of the world. The anointing she received on 29th April comforted her lot. Reverend Father Jimmy, the parish priest of Palam, though he himself was unhealthy, took courage to bless and anoint her. Same evening, she gave us hope by slight improvement. The very next day by 6:30 a.m., our beloved sister flew to her heavenly home before any one of us thought that she is leaving us. Dear sisters, well-wishers, friends, and beloved ones of Sister Maria, we all know that she was a precious pearl in the sight of all, and with that preciousness, she has built her heavenly home. It seems to be an unexpected event to all of us. Yet, in faith, we know that she was skillfully completed the preparation of her heavenly dwelling. So her beloved had no choice other than taking his bride back home. Though we who are still on this earth are striving for our heavenly home, it is difficult for us to accept the reality of the departure of our beloved ones. Especially, it's really difficult to see that the deadly pandemic hit the active and holy souls. No matter, my beloved sisters, whatever may be the manner of departure, the only thing we need to look for is that whether the bridegroom is happy and is waiting for us. It's absolutely right in the case of our sister, beloved Sister Maria. Whoever prayed for her said that Jesus and Mother Mary were with her. From the day she fell unconscious, her soul merged with her beloved. She was found with Jesus, both were smiling. She was found in bride's robe last night. Previous day she was found carried by Jesus to a place to say goodbye. How can we not fold our hands in thanksgiving to the Lord and be proud of our beloved sister that her bridegroom loved her and acknowledged her and wholeheartedly embraced her to her home back. Dear Sister Maria, contentment was your hallmark. Smiling face was your identity. We are unable to see you anymore, yet we know that you were seeing any one of us with your beloved, our breaking hearts, running tears, throbbing minds,
everything is unconsummated. I have completed my race. I am satisfied and have become one with my Lord. Dear Sister Maria, your simplicity, dedication, faithfulness, sincerity, and readiness to be available at any time to anybody is admired by all. Above all, smiling faces unforgettable for everyone who came across your life. Your motherly concern and pleasing personality was very unique. You lived your daily life in little ways of daily chorus. You were an exemplary, obedient religious. You had no complaint in any given situation. You were a simple and approachable soul, not only for common people but also within the congregation. We have surely a precious sister. We have surely lost a precious sister in our life on earth. Yet we know you are in the heavenly community as you immediately join your dear mother who reached the heavenly abode just a month ago, praying for us, especially praying for the suffering humanity. With the sentiments of gratitude, we return you to God. You have taken up your new responsibility in your heavenly home. Dear Sister Maria, with the immense gratitude and a deep sense of sorrow, we bid farewell to you. Your life was a blessing, your memory is a treasure and never fading. You are loved beyond words and missed beyond measure. We offer you our homage. Please remember us and continue to pray for us when you are with your bride. We believe that Sister Maria, the smiling cloud CSN, has reached the heavenly abode, spreading fragrance of selfless love and service here on earth. Yours are the grieving hearts who bid farewell to her with tears. We have received countless messages from cardinals, bishops, priests, and many great people. We wish to read out the messages of Cardinal Mar George Alcheri, the Major Archbishop of the Siramaraba Church, the Archbishop Kuriakos Dharmya, Bishop of Hyderabad, and Bishop Joseph Kodagale, Bishop of Satna. It is with great sorrow I heard the news of the sad demise of Sister Maria CSN, who was suffering for more than 1 month due to a severe attack of COVID-19. It pained not only me but also all those who know her. There are good many people who know her in Kerala, Delhi, and Allahabad. Sister Maria worked for a few years here in Mount St. Thomas, the major archiepiscopal curia of the Siramaraba Church. She was loved by all. She was very serviceable and had a heart for everyone whom she served. She was very kind and considerate to the girls who were working with her in our house. Being a very pious religious, Sister Maria was devoted to prayer life in the regular practice of participating with a great enthusiasm and devotion in the Holy Kurbana and other prayers of the Church. Actually, she suffered a lot during these last days. We were all praying hopefully for her speedy recovery, but the will of the Lord was otherwise, and she was called to her heavenly abode. Together with all those who mourned her death, particularly with Mar Sebastian Vania Bregel, the Curia Bishop, the priests and sisters in the Curia, I express my heartfelt condolences to the congregation of the Sisters of Nazareth, Sister Teresa CSN, the Mother General, Sister Lata CSN, the Provincial, the sisters who worked with her, and especially to the members of her family in Edatua, Kerala.
The Lord has promised the kingdom of God to those who are like children, and Sister Maria must have inherited the kingdom of God because of her childlike simplicity and innocence of heart. May the merciful Lord grant Sister Maria the eternal rest. Cardinal George Alacheri, Major Archbishop of the Syro Malabar Church. Dear Reverend Sister Lata CSN, with the deep sentiments of grief and sorrow, I would like to express my sincere condolences on the sad demise of Reverend Sister Maria CSN, who was a member of the CSN community of Palam Parish in my diocese. In this time of sorrow, please know that you all are accompanied by my thoughts and prayers. She has been a dedicated religious sister wherever she served, and was an example of living the vows of poverty, chastity, and obedience. Sister Maria has been a valuable person who rendered her service at Mount St. Thomas, Kakinad, at the office of Major Archbishop. She also worked with Jalandhar Diocese in Punjab, Satna Diocese in Madhya Pradesh, and also in Assam. Presently, she was working in the Diocese of Faridabad and Palam as Sister Superior of the CSN convent. Sister Maria served the people well here on earth, and may she enjoy eternal peace and love of our Lord while in heaven. On behalf of the Diocese of Faridabad, Delhi, I express our heartfelt condolences to the provincial and all the sisters, especially to the bereaved family. May her soul rest in peace. Yours lovingly, Christ Jesus, Archbishop Kuriakose Bhattikulangara, Bishop of Faridabad. Dear Reverend Sister Lata, it is a matter of great sorrow to know that Sister Maria is called to eternal rest on 30th April morning. She was a zealous missionary all through her life. I remember her long years of service in Nauru. Wherever Sister Maria served, there was joy, and all liked her very much because of her hospitality and loving approach. She was a loving mother to everyone. The congregation and the province lost a good and committed sister. I visited her on 7th April when I went to Delhi on the way to heaven. I remember her dedicated service in the kitchen in Mount St. Thomas in spite of her sicknesses. She is fondly remembered in heaven by many, including the family of my elder brother. The Satna Imaki expresses deep condolences to the province and to the family members on the demise of Sister Maria, and pray that the good Lord grant her eternal reward. I will attend to her funeral online. Thanking you, and with the assurance of my prayers, Ma'am Joseph Kadagalil, Bishop of Satna. आज का यह विश्व बलिदान हम सिस्टर मरिया की आत्म शांति के लिए पिता परमेश्वर को चढ़ाएंगे। जिस प्रकार हम लोगों ने सिस्टर मरिया के बारे में सुना, जिस प्रकार माता सिस्टर मरिया ने अपने पूरे जीवन काल में प्रभु की सेवा की, लोगों की सेवा की, और अंत में ईश्वर ने उन्हें अपने यहाँ बुला लिया है, और ईश्वर की इच्छा को हम लोग के सामने नतमस्तक होकर हम सिस्टर मरिया के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु और माता मरियम और सभी संत उनका स्वागत करें, इनके सारे पापों को क्षमा करें और उन्हें अनंत शांति प्रदान करें। हम प्रार्थना करेंगे पूरे CSN सिस्टर्स कॉन्ग्रीगेशन के लिए। हम प्रार्थना करेंगे इस रीजन के लिए, प्रोविंस के लिए, और इस प्रोविंस के सभी सिस्टरों के लिए,
और जिन लोगों ने विशेष करके इनके साथ काम किया है, प्रभु के सुसमाचार को फैलाने के लिए इन्होंने अथक परिश्रम किया है, उन सबको याद करते हुए आज का मिस्सा बलिदान हम लोग चढ़ाएंगे। सिस्टर मरिया को पिता परमेश्वर अनंत शांति प्रदान करें और योग्य पुरस्कार प्रदान करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे विश्वास का आधार इसी में है कि तूने अपने पुत्र को मृतकों में से जिला दिया है। अपनी सेविका सिस्टर मरिया को पुनर्जीवित कर हमारी आशा सुदृढ़ कर दे। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। दाऊद के वंश यीशु मसीह को बराबर याद रखो, जो मेरे सुसमाचार के अनुसार मृतकों में से जी उठे हैं। इस सुसमाचार की सेवा में मैं कष्ट पाता हूँ और अपराधी की तरह बंदी हूँ, परंतु ईश्वर का वचन बंदी नहीं होता। मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह लेता हूँ, जिससे वे भी यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति तथा सदा बनी रहने वाली महिमा प्राप्त करें। यह कथन सुनिश्चित है, यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। यदि हम दृढ़ रहे तो उनके साथ राज्य करेंगे। यदि हम उन्हें अस्वीकार करेंगे तो वह भी हमें अस्वीकार करेंगे। यदि हम मुकर जाएंगे तो भी वह सदा प्रतिज्ञा बने रहते हैं, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। प्रभु की वाणी।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास रखो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु हम यह भी नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं, तो वहां का मार्ग कैसे जान सकते हैं? यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय बहनों, इस जीवन में अगर हम लोग देखें, दो चीजें हर एक व्यक्ति में समानता है। पहली समानता यह है कि हर एक व्यक्ति को इस संसार में जन्म लेना है। माता के गर्भ में से जन्म लेना है। इसे किसी को छुटकारा नहीं है। कोई अलग अलग रूप से इस संसार में कोई भी नहीं आता है। ये संसार का नियम है। दूसरी समानता, कॉमन थिंग, ये है कि हर एक को उस मृत्यु से गुजर कर जाना पड़ेगा। इस संसार में चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, काला हो या गोरा हो, किसी जाति का क्यों ना हो, किसी धर्म का अवलंबी क्यों ना हो, ये दो बातें, समानताएं उस व्यक्ति में, हर एक व्यक्ति में होना अनिवार्य है। ये प्रकृति के नियम है। और इसलिए हर एक व्यक्ति इस दोनों समानताओं के बारे में भली भांति जानता है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं मर जाऊंगा, मैं अनंत काल तक यही रहूंगा। ऐसा संभव नहीं है, किसी को भी संभव नहीं है। लेकिन इस बात को अगर हम लोग अपने विश्वास की आंखों से देखें, तो हम क्रिस्तीय लोगों के लिए मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु हमारे लिए अंत नहीं है। मृत्यु हमारे लिए अपने एक नए जीवन का द्वार है, जहां से हम लोग एक नए जीवन में प्रवेश करते हैं। और ये प्रवेश किस प्रकार का होगा? सबको प्रवेश करना होगा, लेकिन वहां प्रवेश करने के बाद इसका पुरस्कार क्या होगा? हमारा अंतिम चरणों में जो स्वागत किस प्रकार का होगा, वो इस जीवन में हमारे लिए हम खुद उसको तैयारी करते हैं। एक इटालियन चित्रकार जो एक लेखक भी है,
वो अपने एक लेखन में यह बताता है जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ। हम अक्सर कहते हैं लाइफ इज अ मिस्ट्री, लाइफ हमें समझ में नहीं आता है। हमें जो सामने से दिखता है हम लोग सोचते हैं वही लाइफ है, वही जीवन है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं जो मेरी सोच, जो मैं सोचता हूं, जो मैं अनुभव करता हूं, जो मुझे अच्छा लगता है वही जीवन है। लेकिन वो कलाकार हम लोगों के लिए एक दूसरी ही की ओर ले जाता है। हमारा जीवन इस संसार में एक यात्रा है, इट्स अ जर्नी। हम लोग जैसे एक ट्रेन में जर्नी करने के पहले हम अपनी टिकट बुक करते हैं, हम पूरी तैयारी करते हैं, और ये तैयारी जब हम लोग इस संसार में आते हैं हमारे माता पिता उस तैयारी को पूर्ण करवा लेते हैं, अच्छी तरह से हमारी देखभाल करते हैं। और जैसे ट्रेन में हम लोग जाते हैं, हम ये भी जानते हैं टिकट बुक करते समय हमें कहाँ जाना है, व्हाट इज आवर डेस्टिनेशन। उसमें सवाल पूछा जाता है आपको कहाँ जाना है, तो हम अपना डेस्टिनेशन तय कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार हर एक व्यक्ति जो इस संसार में आता है वो अपना डेस्टिनेशन तय करता है। उन्हें जाना सबको एक जगह पे, लेकिन वो क्या लेकर जाएगा, लेकिन वो किस प्रकार से वह एंट्री मारेगा, ये सब हमारे ऊपर निर्भर है। वो कलाकार ये भी कहता है वो यात्रा जब हम करते हैं, हमारा ट्रेन बहुत बार रुकती है, जगह जगह पर स्टेशंस होते हैं, वहां रुकते हैं। वहां के लोग, कुछ लोग वहां उतर जाते हैं, नए लोग आ जाते हैं, और हम नए लोगों को देखते हैं जो हमारे सीट के आसपास बैठते हैं। कुछ लोग चुप रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग बहुत बोलते हैं, कुछ लोग दूसरों के साथ मिलजुल कर चलने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, स्वार्थी बनते हैं कि पूरी जगह बटोर कर वो बढ़ जाते हैं, किसी को एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा जगह नहीं देते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कुछ लोग ऐसे हैं सबको एक साथ लेकर जाते हैं। छोटी सी जगह अगर है तो उसमें दूसरों को भी बैठाने के लिए जगह देते, आके बैठ जाइए, और प्यार से बात भी करते हैं। और किसी किसी को हम लोग याद भी रखते हैं, किसी को याद नहीं रखते हैं। तो अंत में जब हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, कभी कभी हम लोग उनके अच्छे दोस्त बन जाते हैं, कभी कभी किसी से झगड़ा करके वो झगड़ा अपने घर पर भी ले जाते हैं और शिकायत भी करते हैं। ये एक जीवन है, एक जीवन अलग अलग तरीके से भरा हुआ जीवन है। इसके बाद वो कलाकार उसमें क्रिस्तीय जीवन के बारे में वो बताते हैं। क्रिस्तीय जीवन भले ही एक यात्रा है जैसे दूसरों का जीवन है, लेकिन हमारा जीवन, क्रिस्तीय जीवन एक ऐसा जीवन है जो उस यात्री के बराबर समान है, जो यात्री सबको लेकर जाता है, सबको अपने दिल में जगह देता है, सबको अपने सीट में बैठाता है, और अपने पास जो खाना भोजन है उसे भी उसे बांट देता है। और वो अंत में जब पहुंच जाता है सारे लोग उसे याद करते हैं, और वही यादें उसे पुण्य मिलता है स्वर्ग राज्य में। हम ऐसे विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु इस संसार में आए हमारी मुक्ति के लिए, और वे हमारे जैसे उन्होंने भी जीवन बिताया, एक जगह पे सीमित रहे, और वो मर गए और फिर से पुनर्जीवित किए गए हैं। प्रभु ने बार बार हमसे कहा है मैं ही पुनर्जीवन हूं, और
जो व्यक्ति मुझ पर विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा, जो मरने पर भी जीवित रहेगा। ये हमारा विश्वास है। ठीक उसी प्रकार सिस्टर मरिया की जीवनी हम लोगों ने सुना। वो भी एक ऐसी यात्री थी जो सबको साथ लेकर जा रही थी, अपने जीवन को संपूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित किया था और अपना कुछ भी ना रखते हुए निस्वार्थ रूप से लोगों की सेवा उन्होंने की। और हमें पूरा विश्वास है कि वो आज वहां स्वर्ग राज्य में आनंद मना रही हैं। जैसे मदर लता ने हम लोग को बताया कि उनके जीवन के बारे में, और उन्होंने ये भी हमें बताया कि वो वहां पर शी इज विद अ स्माइलिंग फेस विद जीसस। ये हमारा विश्वास है, स्माइलिंग फेस विद जीसस। आज के सुसमाचार में, आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही एक तरह से प्रासंगिक है। इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड ये है कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बहुत बारी चीजों के बारे में बताया, और जे अंतिम दिनों में प्रभु यीशु ने भोजन के समय एक अलग तरीके से उनका व्यवहार था। हो सकता है 3 साल तक अपने शिष्यों के साथ उन्होंने भोजन किया होगा, लेकिन अंतिम भोजन के समय वो अचानक खड़े हो जाते हैं, अपने कपड़े उतारते हैं, एक निम्न व्यक्ति बनकर, एक तुच्छ व्यक्ति बनकर अपने शिष्यों के पैर धोते हैं। शिष्यों को समझ में नहीं आता, शिष्य घबरा जाते हैं। इसके बाद कहते हैं, रोटी लेकर कहते हैं यह मेरा शरीर है। दाग भरा कटोरा लेकर वो कहते हैं यह मेरा लहू है, यह रोटी मेरा शरीर तुम्हें खाना है। ये दाग रस भरा कटोरा वो मेरा रक्त है और उसे तुम्हें पीना है। एकदम कठिन एक शिक्षा है। शिष्य घबरा जाते हैं, और जब प्रभु उनको समझ लेते हैं और कहते हैं तुम अपना जी घबराना नहीं, तुम घबराओ नहीं, तुम्हें सब कुछ बता दिया जाएगा, सब कुछ तुम्हें समझा दिया जाएगा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास रखो। प्रिय भाइयों बहनों, आज पूरा दुनिया घबराकर एक तरह से बहुत दुखी है, एक विकट परिस्थिति में अपना जीवन बिता रहा है। हम एक दूसरे के पास नहीं आ सकते, हम एक दूसरे को अपने चेहरा नहीं दिखा सकते, हम एक दूसरे के हाथ नहीं मिला सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। तो एक विकट परिस्थिति है। अब स्वाभाविक रूप से हमारा जी घबरा जाता है, हम डर जाते हैं। लेकिन ऐसे परिस्थिति में आज प्रभु यीशु हम लोगों से कहते हैं अपना जी घबराइए नहीं, तुम्हारा जी घबराए नहीं। Do not be afraid, do not lose heart. Sister Maria has left this world because of this pandemic, but at the same time she has left behind us the courage that we should face this world, the remaining part of this pandemic. And he says, I am going to the Father, मैं पिता के पास जाऊंगा, और वहां पर बहुत सारे निवास स्थान हैं। प्रभु यीशु स्वर्ग राज्य के बारे में बताते हैं, और उसी निवास स्थान में सिस्टर मरिया को एक स्थान मिला हुआ है, क्योंकि सिस्टर मरिया ने प्रभु यीशु का अनुसरण किया। प्रभु कहते हैं मुझसे होए बिना तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। मैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं।
प्रभु का मार्ग क्या है? प्रभु का मार्ग है सेवा, प्रभु का मार्ग है प्रेम, प्रभु का मार्ग है दूसरों को अपने जीवन में शामिल करना, अपने साथ ले जाना। प्रभु का जीवन है, प्रभु का मार्ग है निस्वार्थ सेवा। और ये प्रभु का मार्ग को सिस्टर मरिया ने फॉलो किया था। सिस्टर मरिया का मार्ग सिर्फ प्रभु यीशु क्रिस्त, इसलिए वो संपूर्ण रूप से प्रभु के प्रति बिना कोई संकोच के उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया था। प्रभु के मार्ग को उसने चुना था, प्रेम के मार्ग को, त्याग के मार्ग को, प्रेम के मार्ग को उन्होंने चुना था। और सत्यमय, प्रभु यीशु कहते हैं सत्यमय है। और उस सत्य को मरिया ने, सिस्टर मरिया ने जाना था। और सत्य यही है कि प्रभु यीशु हमारा मुक्तिदाता है, ये सत्य है। प्रभु यीशु पिलातुस के सामने जब सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं जो सत्य को पहचानता है वो कभी गुलाम नहीं होगा, वो सच्चाई के मार्ग पर चलता है। और जो सच को पहचानता है उसे आजाद किया जाएगा, वो आजाद व्यक्ति है, ही फ्री पर्सन। और अंत में कहते हैं आई एम द लाइफ, जीवनमय, मार्ग, सत्य और जीवनमय। और वो जीवन प्रभु यीशु हमें देते हैं, जो जीवन प्रभु यीशु अनंत काल तक, जो अनंत जीवन प्रभु हमें देते हैं, जो प्रभु के भोजन में शामिल हो जाते हैं, प्रभु के झुंड में शामिल हो जाते हैं, बपतिस्मा में प्रभु को स्वीकार करते हैं, वो जीवन हम सबों को प्रभु यीशु ने दिया। प्यारे बहनों, हम जरूर शोक मनाते हैं, स्वाभाविक है, लेकिन हम क्रिस्तियों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, हमें आनंद मनाना चाहिए कि हम लोगों में से एक व्यक्ति अपनी यात्रा पूरी करके, अपने जीवन को खत्म करके उन्होंने अनंत जीवन में प्रवेश किया है, जहां हम सबको जाना है। हम लोगों में से कोई व्यक्ति वहां सबको सब वहां जाना पड़ेगा, कोई भी व्यक्ति यहाँ रुकने वाला नहीं है, ये सब हम जानते हैं। इसलिए वही व्यक्ति जो प्रभु का अनुसरण कर सकता है, वही व्यक्ति त्यागमय जीवन बिता सकता है, दूसरों के लिए अपना जीवन बिता सकता है और प्रभु के मार्ग पर चलकर प्रभु को अपना मुक्तिदाता मानकर और वो वहां पर पहुंच सकता है। और सिस्टर मरिया को भी यही वरदान ईश्वर ने दिया है। हम इस मिस्सा बलिदान में जब हम लोग इस यूकरिस्टिक समारोह में शामिल होंगे, हम भी उस अंतिम दिन को लोग याद करें। हमारा जीवन कैसे होगा? क्या हम भी मरिया के समान, सिस्टर मरिया के समान वहां जाके प्रभु के सामने खड़े हो सकते हैं आज के दिन? क्या हमने प्रभु यीशु को अपने मार्ग, प्रभु यीशु के मार्ग पर मैं रोजाना चल रहा हूं? क्या मैं प्रभु को उस सत्य के रूप में मैंने स्वीकार कर लिया है? क्या प्रभु का जीवन मुझ में, दैनिक जीवन में क्या मैं अनुभव कर रहा हूं? इन बातों पर मनन चिंतन करते हुए सिस्टर मरिया के आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हुए ये मिस्सा बलिदान पिता परमेश्वर को चढ़ाएं। आइए हम सब खड़े होकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। विशेष रूप से हम प्रार्थना करें सिस्टर मरिया की आत्म शांति के लिए, इसके साथ साथ पूरे कलीसिया के लिए, कलीसिया में शांति के लिए, दुनिया भर में जो महामारी फैली है और विशेष करके हमारे भारत देश में, हमारे इलाहाबाद में अनेक लोग इससे ग्रसित हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं,
उनके लिए भी प्रार्थना करें और अपने व्यक्तिगत और अन्य आवश्यकताओं के लिए भी अब हम प्रार्थना करें। हे परम दयालु ईश्वर, आज हम हमारी प्यारी सिस्टर स्वर्गीय सिस्टर मरिया जी की आत्मा को आपके बलिवेदी पर समर्पित करते हैं। उनके प्रति आपकी अपार प्रेम और दया के लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए आपसे प्रार्थना करते हैं कि जाने अनजाने में अगर उनसे कोई भूल हो गई हो तो आप उन्हें क्षमा करें और आपके स्वर्गीय यरूशलेम में उनका स्वागत करें, ताकि वे आपका पवित्र मुखमंडल देखकर आनंदित हो और जिस तरह वे अपने जीवन काल में सदा दूसरों के जीवन में खुशियाँ लाते थे, उसी तरह मृत्यु के बाद भी वे हम सबों के लिए आपके वरदानों का साधन बने। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। आइए हम स्वर्गीय सिस्टर मरिया जी के परिवार के सभी सदस्यों के लिए प्रार्थना करें जो उनकी विदाई का शोक मना रहे हैं। उनके सभी प्रियजनों, बंधु मित्रों और उन सबों के लिए हम प्रार्थना करें जो उनके निधन से दुखित हैं। ईश्वर उन सबों के हृदयों को स्पर्श करें और उन्हें ढाढ़स तथा सांत्वना प्रदान करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। इस वक्त हमारे लिए स्वर्गीय सिस्टर जी की आत्म शांति के लिए मिसा बलिदान चढ़ाने हमारे बीच उपस्थित आदरणीय फादर लुइस मस्करेनस जी के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं, ताकि ईश्वर आपको अधिक से अधिक कृपादानों से भर दे, कि आप जिस तरह हमारे मुश्किलों की घड़ी में हमारे साथ रहकर हमें ढाढ़स बंधाते हैं, उसी प्रकार हमारे धर्म प्रांत के हर एक सदस्यों को भी आप प्रभु की ओर से भेजे हुए संरक्षक पिता की तरह संभाल सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हमारे धर्म प्रांत के सभी पुरोहितों और धर्म बहनों के लिए हम प्रार्थना करें कि दुख भरी इन हालतों में भी वे ईश्वर के प्रति और अपने सौंपे हुए लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से संपन्न कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। पृथ्वी भर में फैली इस महामारी से ग्रसित सभी लोगों को हम इस पावन वेदी पर चढ़ाते हैं। साथ ही साथ अन्य मुसीबतों से ग्रसित सभी परिवारों को और उन सबों को हम याद करें जिन्होंने हमसे प्रार्थना मांगी है। सर्वशक्तिमान ईश्वर उन सबों को आशीष दें कि वे अपने मुसीबतों की घड़ी में ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखें और धैर्य के साथ अपने दुख कष्टों का सामना करें। वे ईश्वरीय शक्ति पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ते जाएं। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हम हमारे धर्म संघ को और हमारे संघ के अधिकारियों से लेकर छोटे से छोटे हर एक सदस्यों के लिए भी प्रार्थना करें कि आज के इन बदलते हालतों में भी हम ईश्वर की इच्छा को पूरी करें और हमारे संघ के चैतन्य के अनुसार जीवन बिताते हुए कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ प्रभु के प्रेम और पड़ोसी प्रेम में आगे बढ़ते जाएं। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। आइए हम अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए मौन रूप से प्रार्थना करें। हम उन लोगों को याद करें जो हमारे धर्म प्रांत के पुरोहित जो बीमार हैं, विशेष करके फादर रॉल्फी, फादर जॉय स्टीफन, फादर सुनील मस्करीनस, फादर ज्ञान प्रकाश और अन्य सभी फादर लोगों को तथा सारे सिस्टर्स हमारे धर्म प्रांत की और अन्य जगहों पर बीमार हैं। हमारे लोक धर्मी अपने पैरिशों में, मिशन स्टेशंस में जो बीमार हैं,
एक विकट परिस्थिति का सामना वो कर रहे हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं अपना जी घबराए नहीं, डरना नहीं, क्योंकि ईश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर विश्वास रखो। प्रभु यीशु कहते हैं हम प्रभु पर विश्वास रखते हुए उन सबों को उनके हाथों में सौंप दें। माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा हम उन सबों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। प्रभु यीशु इन्हें चंगा करें। यह हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रार्थना कीजिए कि मेरा और आप लोगों का यह बलिदान पिता ईश्वर ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे पिता अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारे दानों पर कृपा दृष्टि डाल। प्रेम के इस महान संस्कार में हम तेरे पुत्र के साथ एक हो जाते हैं। ऐसी कृपा कर कि तेरे ब्रदर सेविका सिस्टर मरिया को उनकी दिव्य प्रगति प्राप्त हो जाए। वह युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने हमें इनके द्वारा धन्य पुनरुत्थान की आशा दी है, ताकि जो लोग अपनी मृत्यु के विचार से दुखी होते हैं वे अमरत्व की प्रतिज्ञा द्वारा दिलासा प्राप्त करें। हे प्रभु, वास्तव में तेरे भक्तों के लिए मृत्यु जीवन का विनाश नहीं बल्कि विकास है, और इस लौकिक निवास के समाप्त हो जाने पर स्वर्ग में उनके लिए शाश्वत निवास तैयार किया जाता है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन के साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं।
तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। अब तुझसे प्रार्थना करते हैं, वे उदाहरण को अपने आत्मा के संकट से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत वरदान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपनी सेविका सिस्टर मरिया की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु की सहभागी हुई थी, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों को भी सुने ले जो पुनरुत्थान के आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर,
पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। एक हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य शासन और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर की मिलने तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मिलने तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मिलने तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का बेटा जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है वे जो बेवने के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं ईश्वरीय नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, केवल एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
Diocese, Reverend Father Isidore, dear sisters, bereaved family members of our dear Sister Maria, and all our dear and dear ones. Though with deep sentiments of grief, I stand before you to express our heartfelt gratitude to each and every one of you on behalf of our Mother Provincial and Christ-worthy province of the Congregation of Sisters of Nazareth. God has His own ways to express His love, care and concern for every one of us. He has taken a beautiful flower from this Nazareth garden. Though it seems very painful for all of us, God always does the best for us. In this tough time, there are many who stood with us and supported us. I gratefully remember all the support and understanding Reverend Father Luis had for us during these days of our struggle, for allowing us to keep the body in the Nazareth Hospital mortuary, and showing the concern and readiness to be present for the funeral, not just delegating somebody, but to be with us in person, in spite of the restrictions and seriousness of this deadly pandemic. Thank you very much for offering this Requiem Mass and praying for our dear Sister Maria. Thank you, dear Father, for your very presence of consolation and support. I also thank Reverend Father Isidore for supporting us and helping us, especially for live streaming the funeral service and the Requiem Mass, so that those who could not be present here also could participate and pray for our dear Sister Maria. Thank you, dear Father. With much gratitude, we remember Reverend Father Herald, the rector of the cathedral, who made the arrangements in the cemetery, Reverend Father Reginald and Father Bipin, who guided us and supported us in all the ways possible for keeping the body in the hospital and for the funeral service as well. Thank you, dear fathers, for your brotherly concern and support. We also thank our sisters and staff of Nazareth Hospital who stretched their helping hands along with the fathers. We thank Reverend Father Herman SSP, our chaplain, who came to cemetery and prayed for our Sister Maria. Thank you, dear Father. We gratefully remember Reverend Father Sunny CMI from Christ College, Ghaziabad, who helped us for arranging vehicles for our sisters to travel from Delhi. With much gratitude, we remember Reverend Father Jimmy Mattathil, the parish priest of Infant Jesus Church, Palam, where Sister Maria was rendering her selfless service during these years. Thank you, dear Father, for your deep sense of belongingness, love and concern. Thank you for administering the sacrament of the anointing of the sick and praying for our dear Sister Maria, risking yourself and going to the hospital, though you yourself were not fully recovered from the aftermath of COVID. Thank you for offering Mass, Office of the Dead, and praying for her along with your parishioners. Thank you very much to the Infant Jesus Parish community for all your expressions of love, care and concern. With a deep sense of gratitude, we recall all the care and service provided to our dear Sister Maria in St. Joseph's Hospital, Ghaziabad. Very gratefully, we remember the doctors and the staff of the hospital, especially Reverend Sister Edna MSJ, the administrator, Reverend Sister Ali MSJ, the matron, who took care of our Sister Maria as their own, attended her with much dedication and took all the efforts to save her life, spending much time and energy for the last 2 weeks. They were very keen to inform us every change in her
either positive or negative, which kept the whole congregation praying for her day and night. Thank you, dear sisters, for your sincere efforts, care and treatment given to our dear Sister Maria. Thank you very much. Our sincere thanks and appreciation due to our Mother Provincial, Mother Leda, for her intense care, concern and prayer for all these 2 weeks being in Palam community, attending very keenly to her needs from time to time, shouldering all the pressure and pain of the time, spending sleepless nights and praying for her and consoling and supporting the community members, and thus you really became a mother for Sister Maria and for all of us. Thank you, dear Mother Ji, for all your sincere efforts and prayers. We also remember the struggles went through by our sisters being in the Palam community all these days, especially our dear Sister Trisality. We thank our dear Sister Bridget and Sister Sally Jose for all the efforts and arrangements done to get timely information about Sister Maria while she was away from us in the hospital and to inform everyone concerned. With a deep sense of sorrow and hope, we convey our condolence to the family members of our dear Sister Maria. Dear ones, we know that you all wanted to be in person here to say final goodbye to your dear sister. When your request was declined, understanding the present situation, you agreed to that suggestion which was for the good of everyone, treasuring all the pain within you. We wholeheartedly thank each one of you for your cooperation and submission to the will of God. We pray for you all during this tough time, missing your mother and your sister in a month's time. We sincerely thank the entire Nassar family, especially our dear Reverend Mother General, all the provincials, councillors and all the sisters who were giving us all the possible support through prayers and inquiring about her from time to time. Thank you all for being with us. We thank the members of Christian Cemetery Association Allahabad for your timely help to do the funeral service of our sister. We express our sincere gratitude to all who are present here and watching online for your sensitivity and love for our dear Sister Maria. We thank His Beatitude Cardinal Mar George Alancheri, Major Archbishop of Sirumalabar Church, His Excellency Ma Kuriakos Bharanipulangara, Archbishop of Faridabad, His Excellency Ma Joseph Kodangalli, Bishop of Satna, His Excellency Ma Sebastian Adendra, the Bishop of Mandya, who joined us in our painful sentiments and conveyed their message of condolence and consolation on this occasion. Finally, to you, dear Sister Maria, we have no words for you. You loved us immeasurably and cared for us in the best way possible. We think that it is very early for you to leave us, but nobody can stop when God's time comes. We tried our best to stop you, but it was He who decided the time. We abide by that. During your last days, we could not stand by your side and do the care and service you deserved. You are always in our memories and our prayers. Please keep us in your prayers as we struggle to continue our journey. Thank you and goodbye till we meet again in heaven. Thank you very much. I convey my deep sentiments of condolences to Sister Lata, the Provincial of Christ Duty Province, and all the sisters who belong to this congregation. A member's departure is painful, but at the same time,
It is a grace. Sister Maria has shown us the way. She has fought the fight. She has finished the race, and the reward is awaiting in heaven, as St. Paul tells us. On behalf of the clergy, religious, and the faithful of the Diocese of Allahabad, I convey my deepest sentiments of condolences to the congregation, especially to the family of Sister Maria. We prayed for her. God will definitely give her eternal rest, and we believe one day we will see her face to face. Now let us stand for the final prayer. हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे सेविका मरिया के लिए यह पास्का संस्कार चढ़ाया है। हमारी प्रार्थना सुन और ऐसी कृपा कर कि ये तेरी ज्योति और शांति के निवास में प्रवेश कर सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, ईश्वर की शांति में रहे। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।